Hello guys, this is Living One chapter and I'm going to give you a brief review for the whole chapter in just few pages as you can see here. It is just one page and the second page. And believe me, it is all complete from NCRT, so don't get panic. I'm going to start with this chapter. First topic is what is living. Unique features of the living organism. Living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. You know this. Now, reproduction is a characteristic of the living organism. As we all know, reproduction is a characteristic of all living organisms. आपको पता होगा ये. अगर हम बात कर लेते हैं आपकी फंजाई के लिए क्या रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, तो रिप्रोडक्शन वो कैसे करता है, एसेक्सुअल स्पोर बना लेता है. ठीक है. हाइड्रा और ईस्ट क्या करते हैं, बडिंग कर लेते हैं. प्लानेरिया क्या करता है, ट्रू रीजनरेशन कर लेता है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, कई बार ये पूछा गया है कि प्लानेरिया किस में ना ट्रू रीजनरेशन होता है. सो मार्क इट हियर, ट्रू रीजनरेशन किस में होता है, तो प्लानेरिया में होता है. ओके, ये नीट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा से कभी भी रिपीट हो जाता है. फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि फंजाई में और क्या होता है, तो फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है. फ्रेगमेंटेशन के वैसे एग्जांपल 3 हैं, ये भी नीट में आ चुका है. तो कौन कौन से हैं, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनियम ऑफ मॉसेस, ये 3 है ना. फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस. जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए ग्रोथ भी साथ में होता रहता है, उसका साथ ही उसको रिप्रोडक्शन भी होता रहता है, दोनों सेम ही होते हैं. बट are some sterile organisms like mule, worker bees, infertile human. Hence, it cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism. We cannot take reproduction as a inclusive defining characteristics of all living organism, because there are some organisms who are living but they don't reproduce. It doesn't mean they are not living. They are living. So it is not defining property. It is characteristic because they are living but not defining. Now, another characteristic of life is metabolism. Okay, now an isolated metabolic reaction outside the body in the test tube is neither living. Test tube में it is neither living nor second, in test tube it is neither living nor non-living. Okay, if any reaction is going on in a test tube, then we cannot say it is living or non-living. It is neither living nor non-living. Metabolism is a defining feature of all living organisms without exception. As you know, as we all know, मेटाबॉलिज्म ना हर किसी में होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कोई भी है, कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, कुछ भी है, सब में मेटाबॉलिज्म होता है, तभी वो लिविंग है. इसलिए ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक आपका है. इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर. राइट. नाउ, आइसोलेटेड रिएक्शंस आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन. अगर आप किसी भी चीज़ को आउटसाइड बॉडी करते हो तो वो श्योरली जो रिएक्शन है वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन तो है, लेकिन कोई लिविंग थिंग नहीं है. मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म के अंदर तो नहीं हो रहा है, उसको हम बाहर कर रहे हैं, तो और जो रिएक्शन है वो तो लिविंग है क्योंकि वो हमारे अंदर हो रहा है. बट इफ़ वी आर डूइंग इट आउटसाइड तो इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग मीन्स यू नो थिंग. ओके, नाउ ये भी तो क्या हो गया, वो हो गया आपका ना मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग हो गया. नाउ इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. as we all have cell, either unicellular or multicellular, but cell is there. Okay, isolated reactions हैं. cellular organizations of the body is a defining feature of all living organism. Okay, सारे living organism का होता है. now all living organism grow, increase in mass and increase in number are twin characteristics. This is also a good question. Once it has asked that twin characteristics of growth is, so what is twin characteristics of the growth? One is increase in mass and second is increase in number. Number means number of individual. Now, plant grow by cell division, multicellular throughout their life. As we know, plant में जो भी growth होती है indeterminate होती है, वो हमेशा बढ़ती रहती है. multicellular तो होता ही है. unicellular organism also grow by cell division. हर किसी में सेल डिवाइड करेगा ना तभी वो बड़ा होगा. ऐसे ये नहीं कि अचानक कुछ बढ़ जाएगा, नहीं, सेल डिवाइड होता रहेगा, वो उसकी ग्रोथ होती रहेगी. एनिमल्स में ग्रोथ कैसे होती है, अप टू सर्टेन एज, एज वी ऑल नो. इन मेजॉरिटी ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हाँ, अगर हम जैसे हम हैं तो हमारा ग्रोथ एक टाइम पे होता है, रिप्रोडक्शन अलग होता है. जैसे हम पहले हाइट में बढ़ते हैं, बॉडी में बढ़ते हैं,
वो अलग चीज़ है और रिप्रोडक्शन एक अलग चीज़ है। इन दोनों को हम सेम नहीं बोल सकते, बट यूनिसेल्युलर में दोनों सेम होते हैं। अगर वो बढ़ रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो बच्चे पैदा कर रहा है। लेकिन हम अगर बढ़ रहे हैं तो हम बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ बॉडी बन रहा है, सिर्फ एक ही बॉडी है, ठीक। Growth has to be internally, hence it's not a defining property. Growth is also not a defining property because there are some growth that happens from outside, like mountain boulders. It happens from outside, so it is not a defining, but yes, it is a characteristic of living organism. Now, consciousness, defining property of living organism. So organism are distinguished unexpectedly. जो organism है वो distinguish किया जाता है unexpectedly. Let's see what. Every living organism sense and respond to environment. Plants respond to light, water, temperature, pollutant, etc. And photoperiod affects reproduction in seasonal breeders both in plants and animals. देख लो, ये भी कई बार पूछता है ना कि जो फोटो पीरियड ये अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को किस में, दोनों में ही, सीजनल ब्रीडर्स में, जो कि दोनों प्लांट भी एनिमल भी। ये नहीं कि प्लांट में ही सिर्फ करेगा फिर सर्वाइवल, नहीं, दोनों में करता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि किस में करता है। तो जो सीजनल ब्रीडर्स है, जैसे कि डॉग हो गए, काऊ हो गई, ये लोग सीजनल ब्रीडिंग हमेशा 24 घंटा, मतलब हर पूरे 12 महीने ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक मंथ होता है, पीरियड होता है, उसमें ही ये लोग करते हैं, ठीक, नॉट लाइक ह्यूमंस। तो सीजनल हो गए। और सीजनल भी कॉल प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। नाउ ऑल एनिमल्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देम, बिल्कुल सही है। ओनली ह्यूमन हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। आप लोग कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारे पास है, बाकी इस दुनिया में और किसी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है। दे हैव कॉन्शियसनेस बट नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस। कोमा पेशेंट्स ब्रेन डेड, कोमा पेशेंट्स यू नो ना, दे आर ब्रेन डेड बट बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग, हार्ट एंड लंग्स आर रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। Okay, so consciousness is also defining property. This is very important. So what are defining properties? There are 3. 1, your metabolism. Second, your cellular organization. And third, your consciousness. And what are characteristic property? Growth and reproduction are characteristic but not defining. Now, important points. Living organisms are self-replicating. You know, खुद से रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। सेल्फ इवॉल्विंग, इवॉल्व भी होते रहते हैं टाइम के साथ। सेल्फ रेगुलेटिंग, रेगुलेट करते रहते हैं अपने आप को। इंटरेक्टिंग सिस्टम, इंटरेक्ट भी करते हैं बिल्कुल। कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टेमुलाई, और हम जो भी एक्सटर्नल स्टेमुलाई हमारे आसपास होती है उसको हम लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं। नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय ए कॉमन जेनेटिक मटेरियल। देखो, ये पूछा गया है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम कैसे जान लें कि वो हमसे रिलेटेड है, क्योंकि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो थोड़ा बहुत डिग्री में वेरी कर सकता है, बट यस, वो चाहे हमारे पास्ट के हों, चाहे प्रेजेंट के, चाहे फ्यूचर के, वो जो भी होंगे उनसे हमारा जेनेटिक मटेरियल बहुत हद तक मैच होता है, ठीक है ना। सेकेंड टॉपिक इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. So 1.7 to 1.8 million species have been known and described, which refers to biodiversity. Okay, if anyone will ask question that what is biodiversity, then you must know ना what is definition. So simply आप इतना समझ लो कि कितने ऑर्गेनिज्म हैं और कितनी उनकी वैरायटी, इसी को बायोडाइवर्सिटी हम कह सकते हैं. और इसको आपने समझ लो तो इसके अकॉर्डिंग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं. इसको ना डिस्क्राइब भी अच्छे से कर चुके हैं. ठीक, तो ये डाटा आप याद रखना, ये डाटा थोड़ी कई बार पूछा गया है. नाउ जैसे तो ये रिमूव कर गया है, बट थोड़ा बहुत देख लेते हैं. नहीं, ये तो है अभी. नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं. नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. देखो, नाम रखने का यही मतलब होता है कि हम लोग कुछ ऐसा नाम रखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का ना कि पूरी दुनिया में उसको एक ही नाम से जाना जाए. अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना अगर हम अलग अलग नाम रख देंगे तो एक ही नेम से होता है. उसी को नॉमेनक्लेचर हम कहते हैं. प्लांट्स के लिए अलग क्राइटेरिया है, एनिमल्स के लिए अलग. और ये है क्या, प्लांट्स को जो नाम रखते हैं उनका एक एसोसिएशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, ICBN. इसका देखो ये भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, ये देखने में बहुत छोटे होते हैं बट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं. इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है. तो इसका ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN का इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ठीक ना. सिस्टमेटिक्स की हम बात करते हैं. तो सिस्टमेटिक्स, व्हाट इज सिस्टमेटिक्स? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इंक्लूडिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम. सिस्टमेटिक्स का मतलब देखो यहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि सिस्टमेटिक्स में क्या होता है. सिस्टमेटिक्स में देखो दो चीज़ें होती हैं. एक तो इसमें आपका आ जाता है टैक्सोनॉमी. ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको. एक आ जाता है
टैक्सोनॉमी प्लस एक आ जाता है आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी, ये देखो कई बार आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है रिलेशनशिप, ठीक है, तो इसको याद रखना। सिस्टमैटिक्स इज इक्वल्स टू टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब आपसे किसी ने पूछ लिया टैक्सोनॉमी होता क्या, सॉरी सिस्टमैटिक्स होता क्या। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इंक्लूडिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैट। देखो डाइवर्सिटी क्या हो रहा था कि ऑर्गेनिज्म उनकी डाइवर्सिटी, और ये क्या बोल रहा था, अरे हाँ, और ये क्या बोल रहा है कि सिस्टमेटिक क्या होता है, ऑर्गेनिज्म देख लिए, उनकी डाइवर्सिटी देख लिया, अब उनके बीच का रिलेशनशिप देखना है तो क्या करेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लाएंगे। तो सिस्टमेटिक जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सब दे देता है। आपसे ये क्वेश्चन ना अभी तक आया नहीं है, बट मे बी बहुत सारे टेस्ट सीरीज में पूछता है। देख लो, ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ जो सिस्टमा है वो कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ये वर्ड है, वो वर्ड, जैसा क्वेश्चन आपको दे देगा। तो अब याद रखना कि ये डेड है, जो लैटिन वर्ड होता है ना, ये डेड होता है, डेड लैंग्वेज है। तो जो भी हम चीज़ें रखते हैं तो इसमें ये हम फिक्स रहती हैं, मतलब चेंज नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को जो चाहते हैं कि फिक्स रहे उसको हम लोग लैटिन लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो जो सिस्टमा वर्ड है हमारा, वो हमारे लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक ना। लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन नीट, सो प्लीज़ इसको एक बार देख लेना। और इस किसने लिखा है उसको, ये भी बहुत बार कई बार पूछा गया। तो लीनियस ने सबसे पहले जो सिस्टमा नेचुरी उसका बुक था, उसका पब्लिकेशन था, टाइटल दिया था पब्लिकेशन का, ठीक, ये पूछ लीजिएगा। द स्कोप सिस्टमेटिक्स फॉर लेटर इन लास्ट टू इंक्लूड व्हाट। देखो ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेगा कि ये दे देगा वो लेटर इंक्लूड क्या, फिर ऑप्शन दे देगा। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक, ये याद कर लेना भाई, ऑप्शन में कंफ्यूज कर देगा आपको। पहले आप क्या करो, किसी ऑर्गेनिज्म को देखो, आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करोगे, उसका नाम दोगे ना, कुछ नाम तो देना पड़ेगा, इंटू पिंटू चिंटू जो भी नाम दे देना आप। फिर नाम देने के बाद अब क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे कि ठीक है इसका ये फीचर उससे मिलता है, ये फीचर इससे मिलता है, ये फीचर ऐसे मिलता है, फिर आप जाके उसको क्लासीफाई कर पाओगे, राइट। तो ऐसे हो जाएगा ना। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट, देखो यहाँ पे लिख दिया, सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, बता दिया ना। फिर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। हम लोग ग्रुप करते हैं सो कन्वीनियंट कैटेगरीज में, जो बेस्ड होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स में। वी यूज़ कन्वीनियंट कैटेगरीज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म एंड साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। देखो ये भी कई बार पूछा जाता है ना, बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो टू स्टडी ऑर्गेनिज्म एंड साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। जो कैटेगरी को हम लोग टर्म, साइंटिफिक टर्म देते हैं उसको हम लोग टैक्सा कहते हैं। नाउ एनिमल, मैमल, डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा डिफरेंट। देखो ये सब टैक्सा ही डिफरेंट कर रहे हैं डिफाइन, बट डिफरेंट लेवल पे कर रहे हैं। बेस्ड ऑन कैटेगरीज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। ये देखो पूछा गया स्टेटमेंट बहुत सारे टेस्ट सीरीज में, क्लासिफाइड इन डिफरेंट टैक्सा विच इज़ कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। अब ये मत करके आ जाना विच इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये वो मत करके, क्योंकि ऑप्शन में यही सब होता है, ठीक है। तो टैक्सा है यहाँ पे ट्रिक, तो टैक्सोनॉमी हो जाएगा, याद रखना। नाउ यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट टैक्सा पे, किसके बेस पे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के, ये याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, खासियत, आपकी क्या खासियत है उसको देख के ही हम बोलेंगे जो डिफरेंस होगा, ठीक। नाउ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज बाय कैरलस लीनियस। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया और पूछने के चांसेस हमेशा रहते हैं, तो ये सब चीज़ें याद करके जाया करो। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, कैरलस लीनियस के थ्रू दिया गया है। कंटेन जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। नाउ यूनिवर्सल रूल क्या है, लैटिनाइज्ड, जो भी हम चाहते हैं ना कि फिक्स रहे, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, फिक्स रहे नेम, तो हम लोग उसको लैटिन में लिखते हैं क्योंकि डेड वर्ड है। नाउ रिटन, देखो जो भी नॉमेनक्लेचर के जो नेम लिखते हैं वो लैटिनाइज्ड होता है, बट रिटन इन इटैलिक्स, ठीक। फर्स्ट वर्ड इन द जीनस एंड द सेकेंड वर्ड इज़ द स्पीसीज। व्हेन हैंड रिटेन सेपरेटली अंडरलाइंड, अगर हम लोग हाथ से लिख रहे हैं, मान लो ये तो कंप्यूटर ने लिखा, अगर आप हाथ से लिखते तो आप इसको ऐसे अंडरलाइन कर देते, ऐसे अंडरलाइन कर देते, ठीक है। तो इसने तो खुद ही लैटिन में लिखा है, इटैलिक में लिखा है, तो नहीं करना है। अगर आप हाथ से लिखोगे तो करोगे, ठीक। फिर उसके बाद वेयर रिटन इन इटैलिक्स, फर्स्ट वर्ड हो गया जीनस। फिर क्या है, जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। ये देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ना, और
वी ऑलवेज गेट कन्फ्यूज़ कि बताओ स्मॉल लेटर में कौन था, जीनस था। तो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, ये स्पीसीज़ है तो ये स्मॉल लेटर में होगा, तो जो जीनस है वो कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। स्पीसीज़ स्मॉल लेटर, याद रखना बेटा, भूल मत जाना। ये देखो एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, मे बी 19 में था, मुझे याद नहीं आ रहा है, 2019 में क्वेश्चन आया था कि मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो बता दो। तो उसने ट्रिक ये घुमाए थे ना, उसने ये भी साथ में बोल दिया था कि विच वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट, ठीक, उसने ये बोला था। तो बहुत सारे बच्चों ने मैंजिफेरा इंडिका ही टिक कर दिया था और आंसर वॉज रॉन्ग, बिकॉज आंसर में ये दिया था मैंजिफेरा इंडिका लिन, क्योंकि उसने वहाँ पे मेंशन किया था कि साइंटिस्ट के नेम के साथ। और ये भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में को कन्फ्यूज़ देगा। ये देखो ये वर्ड और ये वर्ड तो आपको इटैलिक में है, ठीक, ये और ये इटैलिक में है, लेकिन जो लास्ट वाला वर्ड होता है साइंटिस्ट का नेम होता है ना, उसको आप सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे, कैसे, ऐसे सीधे सिंपल से, लिन, जैसे लीनिया से दिया है तो लिन, जिस भी साइंटिस्ट ने दिया होता है उसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये गलती मत करना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ईजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, बट ऑलवेज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे हमेशा। मॉडर्न टेक्सोनॉमिक्स स्टडीज़, अब जो भी मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ है उसमें क्या क्या इंक्लूड करता है। तो अब जब हम मॉडर्न हो जाते हैं तो हम सिर्फ चीज़ों को ऊपर से नहीं देख रहे होते, हम लोग ऊपर से, अंदर से, उसके सेल के लेवल पे, हर लेवल पे बात कर रहे होते हैं। तो इसने भी अलग अलग लेवल बात किया। सबसे पहले तो एक्सटर्नल, जो हमें ऊपर से दिख जाता है, फिर हम लोग इंटरनल, उसके और अंदर जाओगे तो सेलुलर लेवल, सेल स्ट्रक्चर देख लो, फिर देखोगे, अब वहाँ पे देखोगे ना कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो डेवलपमेंट लेवल पे भी देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इकोलॉजिकल लेवल, क्योंकि हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना कि हमारा उसका इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्म। तो ये सब हमारे मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में आते हैं। नाउ प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू क्लासिफिकेशन, क्या क्या प्रोसेस जो बेसिक क्लासिफिकेशन, बेसिक टू क्लासिफिकेशन, तो ये होता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। मैं आपको एक इसका ट्रिक दे देती हूँ, इसको आप ऐसे याद करना। सिंक, मैंने भी ऐसे याद किया था, आप भी ऐसे ही करना। सिंक होता है SI, आप जैसे हम लोग लिखते हैं ना, सिंक डूब गया वो, तो ऐसे ही आप याद करना, सिंक। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। कई बार पता है क्या करता है, टेस्ट सीरीज़ में आप देखना, ये ना इसका वही पूछ लेते हैं, सीक्वेंस पूछ लेते हैं, कौन सा पहले आया था। तो पहले कैरेक्टराइजेशन है, फिर आइडेंटिफिकेशन है, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर है क्लासिफिकेशन, ठीक है। अर्लियर क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस, ये भी कई बार पूछा, ये बहुत देखो ईजी है, ठीक, बट बच्चे क्या करेंगे ना, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या जाएंगे। तो यूज़ पे पहले हम लोग यूज़ पे करते थे कि अच्छा ठीक है, तुम ये चीज़ इस चीज़ में यूज़ आ रहा है, चलो इसको ये नाम दे देते हैं, ये इसमें याद है उसको वो नाम दे देते, ऐसे होता था, ठीक है। तो यूज़ पे हो रहा है। फिर हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। तो ईच स्टेप इन क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स अ रैंक, बताइए हर एक स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं ना, रैंक कहते हैं, कैटेगरी कहते हैं, फिर उसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, और फिर जो सारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी मिल के टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं, ओके। हायरार्की एंड ईच कैटेगरीज रिफर as one unit of classification called as that represents rank, and commonly called as taxon. Now group represent category like insect, it further denotes rank or taxon. This group category distinct, हाँ देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया ना कई बार, एक बार ये पूछा था क्वेश्चन किसी टेस्ट सीरीज में कि दिस ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल कैटेगरीज और नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल। देखो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या था, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज होते हैं, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल, मतलब ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी को हम लोग जो भी कैटेगरी या फिर हम लोग ग्रुप बनाते हैं उसी हम लोग ऊपर से देख के तो नहीं बनाते हैं, क्योंकि अंदर से बहुत सारी चीज़ें सबके अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट को देख के नहीं बनाया जाता है, इसमें बायोलॉजिकल डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ को लेते हैं, अलग अलग जो बायोलॉजी की लेवल पे चेंजेस है उसको हम लोग लेके तब कैटेगरी हम लोग बनाते हैं, बहुत ही साइंटिफिक चीज़ों तरीके से बनता है ना, तो वो देख लो। अब आप यहाँ आ जाओ, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हम बात करें तो पढ़ ही लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ना। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीसीज। अच्छा आपको कभी बहुत बार ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि चलो उसको वो बता दो कि कहाँ पे कौन सा आता है, ठीक है। तो आपको मैं एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रही हूँ, मैंने भी ऐसे याद किया था। कप को फंगस, देखो कभी कभी हम लोग कोई कप रख देते तो उसमें फंगस लग जाता है, अगर आप बहुत दिन तक उसको वॉश ना करें, उसमें कोई खाना रखी, तो आप ऐसे याद रखना, किंगडम, फाइलम, इसको क्या बोलते हैं, किंगडम, फाइलम, जो भी
फिर उसके बाद है ऑर्डर, हाँ क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ऐसे ही आप याद रखना डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कभी नहीं भूलोगे कब को फंगस लग गया, तो कब को फंगस मैंने ऐसे याद किया, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलो अब डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर बता दो, तो हमेशा याद रखना। और एक क्वेश्चन पूछा यहाँ पे ये भी चाहता है कि अगर हम लोग डिसेंडिंग वे में नीचे आ रहे हैं, मतलब किंगडम से स्पीसीज की तरफ आ रहे हैं, तो कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेंगे या घटेंगे। तो अगर जितना छोटा लेवल होता है ना, इतने कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं, और जितना वो ऊपर यहाँ पे जाते जाओगे ना, वहाँ पे जो कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं स्पीसीज़। तो स्पीसीज आपको पता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी। ये देखो फंडामेंटल सिमिलैरिटी होती है, और स्पीसीज़ वही होते हैं ना जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके, मतलब उसको स्पीसीज कहते हैं। हाँ देखो, दैट कैन इंटरब्रीड, तो याद रखना है। एग्जाम्पल आप देख लो इसका, बहुत ही अच्छा है। इंडिका बोलते हैं ना, ट्यूबरोसम, लियो, सेपियंस। वन जीनस में है मोर देन, हाँ ये भी देखो एक जीनस के पास एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम क्या क्या तो बोलते हैं। तो एक जीनस के पास बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं। नॉट रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी। वो अगर स्पीसीज चेंज हुआ तो ऑर्गेनिज्म अलग हो जाएगा, लेकिन उसमें खासियत क्या रहेगी ना कि जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ है वो सेम होंगी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ क्या होंगी, सेम होगी। नाउ हम लोग बात करते हैं जैसे पैंथरा में, हम देखें पैंथरा जीनस है, उसमें क्या क्या हो जाएगा, पैंथरा ट्राइग्रिस, पैंथरा लियो, पैंथरा, अरे फिर जो भी लेपर्ड का होता है। फिर लोग बात करते हैं ये सोलैनम का, सोलैनम ट्यूबरेसम, सोलैनम नाइग्रम, सोलैनम मेलोंजिना। ये नाइग्रम मेलोंजिना आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लेता है। फिर हम लोग बात करते हैं जीनस की। जीनस क्या होता है, देखो जीनस यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे तो ये स्पीसीज़, जितने भी स्पीसीज़ को आप इकट्ठा कर दोगे तो जीनस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये अब जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़। अब जीनस क्या था हमारा, सोलैनम, सोलैनम ट्यूबरेसम, सोलैनम मेलोंजिना, ये सब है, तो इसके नाम है पोटैटो एंड ब्रिंजल के। पैंथरा हमारा जीनस था, उसमें कौन कौन आ जाएगा, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टाइग्रिस, सब। फैलिस हमारा जीनस, इसमें कैट आ जाएगी आपकी। ठीक है, फैलिस मेरा जीनस है ना। फैमिली की हम बात करते हैं, अब देख लो यहाँ पे आप थर्ड कौन है, फैमिली है नीचे से, तो हम लोग फैमिली की बात कर लेते हैं। ओके, फैमिली क्या है, रिलेटेड जेनर आप देख ही ले, बस लेस नंबर, देखो आप ऊपर जाओगे तो सिमिलैरिटी कम होती जाएगी, सिमिलैरिटी डिक्रीजेस, लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, दे आर कैरेक्टराइज्ड ऑन बोथ द वेजिटेटिव। ये कई बार पूछ लेता है ना कि फैमिली किस पे बेस पे कैरेक्टराइज होते हैं, तो कैरेक्टराइज ऑन, ये भी अच्छा करते हैं, वेजिटेटिव भी एंड रिप्रोडक्टिव भी, हम दोनों चीज़ को ले लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही ना रह जाए। ठीक है, वेजिटेटिव भी एंड रिप्रोडक्टिव भी ऑन प्लांट्स। ना एग्जाम्पल क्या है फैमिली का, जैसे हम बोलते हैं ना सोलानेसी, ठीक है, कैनिडी ये डॉग की फैमिली हो गई, फैलिडी ये कैट की फैमिली हो गई, ये हो गई कैट की फैमिली, ये हो गई डॉग की फैमिली। ठीक है, तो ऐसे होता है। सोलानेसी आप जान ही रहे हो, जो भी आप खाते हो। पैंथरा एंड फैलिस आर प्लेस्ड इन द फैरिडी फैमिली। पैंथरा जिसको कहते हैं ना कि जो शेर की मासी है बिल्ली, तो इसमें कौन आ जाएगा, कैट आ जाएगी, फैलिस आ जाएगा, पैंथरा आ जाएगा। ठीक, ये सारे आ जाएंगे। हम लोग बात करते हैं ऑर्डर की। अब देख लो ऑर्डर 4th नंबर पे है। ऑर्डर किसको किसको रखता है, पूरे फैमिली को रखता है। तो ऑर्डर यहाँ पे क्या है, असेंबलीज ऑफ फैमिली बोल दिया ना। हायर एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ द कैरेक्टर्स। बताइए, सिमिलर कैरेक्टर्स आर फर्दर डिक्रीज। मैंने फिर से बोला, अब ऊपर जा रहे हो ना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक, नाउ इसमें कौन कौन से ऑर्डर आ जाते हैं, देखो जैसे ऑर्डर होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है। ठीक है, कार्निवोरा एक ऑर्डर है। ये किस पे बेस्ड होते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दे आर बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। देखो यहाँ पे ये किस पे बेस्ड होते हैं, तो फ्लोरल कैरेक्टर्स भी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है यार, तो याद से रखना इसको। मैंने ऐसे याद किया था, ऑर्डर है तो तो ऑर्डर किस पे बेस्ड रहता है, तो फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड रहता है। ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टर्स पे ऑफ से याद रख लेना। नाउ क्लास इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, पता है। क्लास में क्या आ जाएगा, जैसे मैमेलिया हमारा जो क्लास है, मैमेलिया क्लास हो गया। प्राइमेटा तो ऑर्डर है, और प्राइमेटा। कार्निवोरा आपका ऑर्डर हो गया। तो हमारा इतना ही दिया है, मैमेलिया इंक्लूड ऑर्डर प्राइमेटा में कौन कौन से आ जाते हैं, मंकी, गिबॉन, गोरिल्ला। और फिर कौन सा ऑर्डर है, कार्निवोरा, जिसमें टाइगर, कैट एंड डॉग आ जाते हैं। क्लास क्या है, मैमेलिया है ये।
चलो बात करते हैं फाइलम। फाइलम हम एनिमल्स में, डिवीज़न हम प्लांट्स में बोलते हैं। तो क्लास लाइक पीसेज, आपने पढ़ा है ना कि पीसेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, 4 का क्लासेस होते हैं और इंक्लूडिंग द फाइलम कॉर्डेटा, वो सब फाइलम कॉर्डेटा में ही रखे गए हैं। नाउ लास्ट इज किंगडम। देख लो हाईएस्ट कैटेगरी, किंगडम को पता है 2 ही होते हैं, प्लांट या एनिमलिया, ये हो गया। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट, सब categories in the hierarchy are introduced to facilitate more sound and a scientific placement of various taxa. Higher the category, greater the difficulty of determining the relationship of taxa. ये पता है आपको, कई बार टेस्ट सीरीज में यार, so many times in test series this question has asked. टेस्ट सीरीज में न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए प्लीज़ इसको एक बार देख लेना। इस स्टेटमेंट को मैंने वैसे बता दिया कि जैसे जब आगे बढ़ोगे ना, ऊपर जाओगे तो कैटेगरीज कम होती जाती हैं कॉमन, ठीक है। नाउ इंफॉर्मेशन गैदर्ड ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमी। आपको पता है प्राइमरी सोर्स क्या होगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया गया एक्चुअल स्पेसिमेन को, उसी का प्राइमरी सोर्स होता है। क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं ऐसे ही बोल देंगे, एक बेसिस होना चाहिए ना, तो एक्चुअल को ले आते हैं स्पेसिमेन को। ये भी कुछ आप देख लो, हर्बेरियम क्या करता है, वैसे तो ये हटा दिया गया है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जाने दो। सो वी हैव completed this chapter. Please subscribe my channel if you like it. Thank you so much.